Assalamualaikum. So this lecture is about adaptations. So first of all, in this lecture we will cover the adaptation, its subtypes, and further explain them. Okay. So what is adaptation? First of all, we will go through its definition. It is a very important topic in exam point of view. Okay. So what is adaptation? Adaptation is a reversible process. It is a reversible process that gives response to physiological change and pathological stimuli. As a result of which a new, altered, yet steady state is achieved, allowing cells to function and survive. Okay, so this is the definition. Reversible process. Okay, underline this point. Response to physiological change and pathological stimuli. Okay, as a result of which a new, altered, yet steady state is achieved, allowing cell to function and survive. Okay, ये आपको पूरा इस definition से आपको समझ में आ गया what is adaptation. Okay, now we will be discussing the types of adaptations. So what are the types? Number one is hypertrophy. Hyperplasia. Okay, atrophy and metaplasia. ठीक हो गया जी? Now we will be discussing these one by one. What is hypertrophy? Increase in size of the cell. What is hyperplasia? Increase in number of cell. And what is atrophy? It is a combination of both. It is opposite of both. Okay, it is decrease in number of the cell and decrease in the size of the cell. And what is metaplasia? Metaplasia is the replace of one cell with another cell, but the but the parent cell is same. Okay, now we'll be discussing one by one with their subtypes. Here it is, hypertrophic. What it means? It means increase in size of cell or organ or tissue, and that lead to increase in number of the cell. Okay, ये इसकी definition हो गई. अब ये कैसे करता है? What is the mechanism through which hypertrophy occurs? So the mechanism is it increases the production of protein. It increases the production of protein. Okay, but in non-dividing cell or in non-replicating cell. That is the mechanism of hypertrophy. Okay, now we will be discussing about its further. What are the two types of stimuli? So how hypertrophy occurred? Stimuli are, one is the increased workload, other one is the growth factor in a physiological. Okay, there are two subtypes. One is physiological hypertrophy, and other one is pathological hypertrophy. So physiological hypertrophy occurs due to increased physiological demand, and stimulation by growth factor. Okay, so these are the, so what is the example of the physiological hypertrophy? Example include, one is the uterine enlargement in pregnancy. Okay, breast enlargement in lactation, and third is bulging out of muscle in bodybuilders or muscle hypertrophy. ठीक है, ओके, तो ये सारा हमारे पास फिजियोलॉजिकल हो गया. सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल, it occurs due to increased physiological demand and increases the stimulation of growth factor. What are the examples? Example include the uterine enlargement in pregnancy, breast enlargement in
lactation and bulging out of muscle in body builders। ये सारे एग्जाम्पल आपको रॉबिन में मिलेंगे। यहाँ से लेक्चर आप सुन लें, रॉबिन खोलें, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजिकल हमारे पास कब होगा हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल इन chronic hypertension, okay, and aortic wall stenosis। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, aortic wall stenosis और chronic hypertension में हमारे पास hypertrophy हो जाती है कार्डियक मसल की, and that lead to left ventricular hypertrophy। ठीक हो गया, ये लीड करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये हमारे पास पैथोलॉजिकल हो गया। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, अब क्लियर हो जाएगी बात। हियर इट इज, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल यूट्रस, एंड दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। ये आप नॉर्मल सेल देख रहे हैं हमारे पास यूट्रस के, जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी रहेंगे दिस। ओके, ये हमारे पास हो गया फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल। ये रॉबिन में है। हियर इट इज, यहाँ पे अभी आप देखें, ये हमारे पास नॉर्मल मायोसाइट है, ओके, एंड दे हियर जैसे इस पे इंक्रीज हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हुआ, इट विल गेट इनटू एडेप्टेशंस, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। जो हमारे पास जो नॉर्मल मायोसाइट था, मायोसाइट में हमारे पास जो वर्कलोड है वो ज्यादा हुआ, और वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कब होता है हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, और आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में, एंड देन इट विल एंटर इनटू एडेप्टेशंस, दैट इज हाइपरट्रॉफी। ये देखिए नॉर्मल हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, एंड यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द साइज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज हाइपरट्रॉफिड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल भी है, पर मोर हम लेफ्ट वेंट्रिकल को करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास पंप करेगा, देन ब्लड विल एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड हियर यू कैन सी इफ इट इज अनट्रीटेड इस्कीमिया लीडिंग टू सेल इंजरी। ओके, अब इसमें क्या हो गया, इस्कीमिक हो गया, ब्लड सप्लाई हमारे पास इनसफिशिएंट है, देन इट विल लीड टू सेल डेथ। हियर यू कैन सी दिस व्हाइट पार्ट इज नेक्रोसिस, इट इज द नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। बात आ गई समझ में? दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अब नेक्स्ट हम हाइपरप्लेजिया करेंगे। ओके, सो देयर इज अ हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया अब क्या है, इट इज द इंक्रीज इन सेल नंबर, बट इट अकर इन डिवाइडिंग सेल्स। हाइपरट्रॉफी हमारे पास क्या था, दैट अकर इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म यह है ड्यू टू इंक्रीज इन सेल प्रोडक्शन फ्रॉम टिश्यू स्टेम सेल्स। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन few cell proliferation from stem cells से सेल की जो है क्या होती है, प्रोलिफरेशन इंक्रीज होती है। एंड सेकंड हमारे पास ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस प्रोलिफरेशन होती है, ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस प्रोलिफरेशन होती है। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म and this is the definition of hyperplasia. Now how many types of stimulus are there? Of course there are two types of stimulus, one is physiological and other one is pathological. ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई हमारे पास फर्दर दो हैं, एक हमारे पास है हार्मोनल, अदर वन इज कंपनसेटरी। ओके, सो हार्मोनल जो है वो जाहिर सी बात है किसी हार्मोन की वजह से होगा, और हार्मोन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होती है फीमेल ब्रेस्ट की, इन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, बस मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशंस, ठीक है, और एट प्यूबर्टी भी हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है फीमेल ब्रेस्ट की। सेकंड हमारे पास है दैट इज यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो है, यूट्रस इन प्रेगनेंसी शो हाइपरप्लेजिया। ओके, ड्यू टू इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज ओवेरियन स्टेरॉइड्स। यूट्रस इन प्रेगनेंसी शो हाइपरप्लेजिया ड्यू टू इंक्रीज इन ओवेरियन स्टेरॉइड। ओके, थोड़ी राइटिंग इधर उधर है पर मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में। प्रोलिफरेशन इन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूट्रस इन प्रेगनेंसी शो हाइपरप्लेजिया ड्यू टू इंक्रीज ओवेरियन स्टेरॉइड्स। ओके, ये हमारे पास दो एग्जांपल हो गए हार्मोन के। अब दूसरा स्टिमुलाई जो है वो हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल है कि नॉर्मल है, ठीक है, कंपनसेटरी। अब कंपनसेटरी कब होगा, हाइपरप्लेजिया तब होगा जब हमारे पास, हाइपरप्लेजिया तब होगा जब हमारे पास एक किडनी, रिमेनिंग
kidney when other is removed. So therefore workload on one kidney in remaining kidney increased. Okay, जब हमारे पास एक किडनी बचा है, जब हमारे पास दूसरा किडनी जो है वो रिमूव हो जाए ड्यू टू एनी फैक्टर, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग किडनी है उस पर वर्कलोड ज्यादा आएगा. जब उस पर वर्कलोड ज्यादा आएगा देन इट विल गो इनटू एडेप्टेशन, दैट इज फिजियोलॉजिकल हाइपोप्लेजिया में वो चला जाएगा. ओके, नाउ वी विल कम इनटू पैथोलॉजिकल हाइपोप्लेजिया. व्हाट इज पैथोलॉजिकल हाइपोप्लेजिया? पैथोलॉजिकल हाइपोप्लेजिया इज ड्यू टू इंक्रीज हार्मोनल, ये हार्मोनल भी हो सकता है, ठीक है, एंड ड्यू टू इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर की वजह से भी हो सकता है टारगेटेड सेल में. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएंगी? इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, ठीक हो गया. इसमें हमारे पास आ जाएगा थायराइड हाइपोप्लेजिया, सही. और इसमें हमारे पास आ जाएंगे गायनेकोमेस्टिया दैट अकर इन सिरोसिस ऑफ लिवर. मैं पूरा यहाँ पे लिख नहीं सकती, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइपोप्लेजिया में आ रहे होते हैं, पैथोलॉजिकल हाइपोप्लेजिया में. या बोन मैरो हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है, बोन मैरो हाइपोप्लेजिया. पैथोलॉजिकल है इंक्रीज हार्मोनल, इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर, कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, थायराइड हाइपोप्लेजिया, बोन मैरो हाइपोप्लेजिया, ठीक है, इनकी वजह से हो रहा है. तो ये सारा हमारे पास हाइपोप्लेजिया था. व्हाट इज हाइपोप्लेजिया? इंक्रीज इन सेल नंबर, इट अकर इन डिवाइडिंग सेल्स. इंक्रीज mechanism is increase in few cells proliferation from stem cells और growth factor induced proliferation of mature cells. फिर हमारे पास स्टुमुलाई दो हैं, एक है फिजियोलॉजिकल और सेकंड इज पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में हमारे पास दो आते हैं, वन इज हार्मोनल, अदर वन इज द कंपनसेटरी. ओके, हार्मोनल में हमारे पास क्या होता है? प्रोलिफरेशन इन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अकर एट प्यूबर्टी एंड इन लैक्टेशन. यूट्रस इन प्रेगनेंसी शो हाइपोप्लेजिया ड्यू टू इंक्रीज ओवेरियन स्टुमुलाई. ओके, एंड कंपनसेटरी में हमारे पास आ जाता है व्हेन द remaining hypoplasia occur in remaining kidney when other is removed due to any factor, so the workload is increased in remaining kidney. Okay, and that will enter into hypoplasia or in adaptation. Last, that is pathological hypoplasia, that is increased hormonal, it occur due to increased hormonal और increased growth factor, इन दोनों की वजह से होता है. ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, थायराइड हाइपोप्लेजिया, बोन मैरो हाइपोप्लेजिया और गायनेकोमेस्टिया इन लिवर सिरोसिस. ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे atrophy. Okay, so now what is atrophy? Atrophy is decreased size and decreased cell number. Okay, so what is the mechanism of atrophy? इसकी size और cell number तो कम हो जाता है, पर इसका function जो है may be decreased. Okay, but they are not dead. Okay, ये dead cells नहीं है, वो dead नहीं हुए हैं, वो function कम करेंगे, but they still are alive. What is the mechanism? Mechanism हमारे पास ये है कि ये atrophy occur in the result of increased protein synthesis and decrease protein degradation. प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो गई है या प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है वो कम है, उसकी वजह से हमारे पास एट्रोफी हो रहा है. एंड synthesis and degradation that is mediated by lysosome. Okay, lysosomal acid proteases, acid hydrolase. Second is ubiquitin, proteasome and autophagy and residual. ओके, ये हमारे पास हो गया. डिक्रीज साइज, डिक्रीज सेल नंबर, फंक्शन कम होता है पर डेड नहीं होता है हमारे पास. मैकेनिज्म क्या है इसका? दैट इज द मैकेनिज्म इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, दैट इज मीडिएटेड बाय लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम, ऑटोफैगी एंड रेजिडुअल बॉडीज. क्लियर हो गया? नाउ वी विल कम टू इट्स टाइप्स और इट्स स्टिमुलाई, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. सेम फिजियोलॉजिकल टाइप्स दो हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी. ओके, सो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो है हमारे पास डिफरेंट एजेस में होता है, डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ में होता है. जैसे कि अभी हम देखेंगे हमारे पास फीटल लाइफ में जो है नोटोकॉर एट्रोफी हो जाती है, हमने एमब्रियो में पढ़ा हुआ है ये. एंड इन्फेंट में अगर हम देखें तो अम्बिलिकल वेसल्स हैं, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड है. ठीक हो गया. फिर अडल्ट में जब हम देखते हैं
Then we have thymus. When we grow, it decreases or it become atrophied. Appendix. Okay, and uterus after parturition. Breast after lactation. क्लियर हो गया? और लास्ट में हमारे पास है गोनेड्स आफ्टर मेनोपॉज. ये हमारे पास हम कह रहे हैं कि ओल्ड एज में है. ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज. सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी. अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी की बात करते हैं. तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी हमारे पास फर्दर दो टाइप की होती है. ठीक है, एक होती है हमारे पास जनरलाइज्ड एंड अदर वन इज द लोकलाइज्ड. अब जनरलाइज्ड में हमारे पास क्या आता है? एंड दिस इज लोकलाइज्ड. ठीक हो गया? So, अब जनरलाइज और लोकलाइज की हम बात करते हैं. तो जनरलाइज में हमारे पास क्या हो सकता है? वेट अ मिनट, मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, क्या था हमारे पास? पैथोलॉजिकल एट्रोफी. एक हमारे पास क्या है? जनरलाइज्ड है. सो अदर वन इज द लोकलाइज्ड. सही हो गया बात? जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड. अब जनरलाइज्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे आप देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल एट्रोफी हो सकती है अगर हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लाई प्रॉपर नहीं है. अब इसमें हमारे पास क्या आएगा? मेरिस्मस. ओके. सेकेंड थिंग इज हमारे पास आएगा सिनाइल एट्रोफी. दैट इज एज रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस. एज रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस है. ठीक हो गया? अब हमारे पास थर्ड जो आती है दैट इज एंडोक्राइन एट्रोफी. हाइपोपिट्यूरिज्म की वजह से एट्रोफी ऑफ थायराइड. ओके, इस तरह हमारे पास एट्रोफी थायराइड, एट्रोफी ऑफ एड्रिनल अब नजर आ रहा है. सही, एंडोक्राइन एट्रोफी. सही हो गया? एक है न्यूट्रिशनल एट्रोफी, सिनाइल एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोफी, स्कीमिक एट्रोफी और प्रेशर एट्रोफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं. प्रेशर एंड स्कीमिक. ब्लड सप्लाई हमारे पास इनसफिशिएंट होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? रिजल्ट्स इन एट्रोफी. प्रेशर, अगर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे देन इट विल रिजल्ट इन एट्रोफी. एंडोक्राइन एट्रोफी, जब हमारे पास हाइपोपिट्यूरिज्म है, हमारे पास हार्मोन सिक्रीशन कम है, तो वो टारगेटेड ऑर्गन पे एक्ट कम करेगी और उससे रिलीज करवाएगी हार्मोन को कम. ओके, इसमें हमारे पास थायराइड एट्रोफी है, हमारे पास एड्रिनल एट्रोफी है. इस तरह सिनाइल एट्रोफी इज एज रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस. ओके, एंड न्यूट्रिशनल एट्रोफी दैट अकर इन मेरिस्मस. तो ये आपको जनरलाइज्ड एट्रोफी जो है वो आपको समझ में आ गई. अब हम लोकलाइज पढ़ते हैं. जनरलाइज तो ये तो मतलब पूरे बॉडी पे है. अब लोकलाइज जो स्पेसिफिक जगह पे है. ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाएगा स्कीमिक. स्कीमिक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर कंडीशन हमारे पास सेम नहीं है. ठीक है, स्कीमिक एट्रोफी हो सकती है जिसमें हम हार्ट, स्कीमी ऑफ द हार्ट. ओके. सेकेंड इज प्रेशर एट्रोफी, वो भी यहाँ पे आता है. स्पेसिफिक पार्ट को मैंने इस हाथ को यहाँ से प्रेस कर लिया. ठीक है, ब्लड सप्लाई हमारे पास आगे नहीं पहुंचा. जब आगे नहीं पहुंचेगा देन दे विल बिकम एट्रोफिड एंड इफ द प्रेशर इज नॉट रिमूव इट विल लीड इनटू नेक्रोसिस और सेल डेथ. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रेशर. थर्ड इज द डिसयूज एट्रोफी. आपने देखा होगा जिनके हाथ टूट जाते हैं उनको हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने इतने अर्से तक हाथ को हिलाना नहीं है, पर बाद में जो है वो आपने थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट कर लेनी है. पर वो लोग इतना डरे होते हैं कि वो नहीं करते ना, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करते हाथ की. वो बिल्कुल इस तरह है तो इस तरह रहता है. ठीक है, पर जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस रिमूव करते हैं देन आप देखते हैं कि जो डिसयूज है वहाँ से जो है क्या होने लगता है, वहाँ से एट्रोफिड होता है. हमारे पास मसल डिसयूज हुए हैं तो उसकी जो मसल वेस्टेज होना शुरू होती है वो किसकी वजह से होता है? डिसयूज की वजह से. या पैरालाइज पेशेंट में आपने देखा वो कि पैरालाइज पेशेंट तो मूव नहीं कर सकते ना, तो उसकी वजह से उनके जो लेग्स, थाई के हैं और जो काफ के मसल्स हैं वो हमारे पास एट्रोफिड में आ जाते हैं. ओके, एंड थर्ड इज द आई थिंक इज फोर्थ जो है हमारे पास आ जाता है डीनर्वेशन एट्रोफी. ये हमारे पास डीनर्वेशन कहाँ पे हो रहा होता है? पोलियो में होता है. ठीक है, पोलियो में हमारे पास डीनर्वेशन होता है. किसी की नर्व की कंप्रेशन की वजह से हमारे पास डीनर्वेशन एट्रोफी हो जाती है.
एंड द लास्ट इज आइडियोपैथिक. आइडियोपैथिक एट्रोफी. आइडियोपैथिक एट्रोफी अब किस में होता है? मायोपैथी, ठीक है, या क्रिप्टोकिटिज्म. ये दो एग्जाम्पल है आइडियोपैथिक के. तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ कर ली. एट्रोफी की डेफिनेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी, एंड देन द टाइप्स, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में फीटल, इन्फेंट, एडल्ट में अलग अलग चीज़ें थी. पैथोलॉजिकल की बात की तो हमने उसमें जनरलाइज और लोकलाइज की बात की. जनरलाइज न्यूट्रिशन था जो कि मेरिस्मस की वजह से हो रहा है, सिनाइल एट्रोफी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एंड इस्कीमिक. लोकलाइज में हमारे पास आ जाता है इस्कीमिया, ओके, प्रेशर एट्रोफी आ जाता है हमारे पास, डिस्यूज एट्रोफी आ जाता है, एंड डिनर्वेशन है, आइडियोपैथिक एट्रोफी है. ठीक हो गया. तो ये हमने एट्रोफी कवर कर लिया. अब लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मेटाप्लेशिया. Here we go. The last type of adaptation is a metaplasia. So what is metaplasia? Metaplasia is the type of cell that is replaced by another cell, but parent cell remain same. ठीक हो गया. It usually occur in chronic physical and chemical irritation. जो क्रॉनिक हमारे पास फिजिकल और केमिकल इरिटेशन होती हैं उनकी वजह से हमारे पास मेटाप्लेशिया होता है. ठीक है, एक्यूट में ये नहीं होता. अब फर्दर इसके टाइप्स में देखते हैं. तो टाइप्स में हमारे पास इसके दो टाइप्स आते हैं. एक आता है हमारे पास टिश्यू, एक आता है हमारे पास एपिथेलियल, एंड सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया. ओके, तो एपिथेलियम में और कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? अब ये हमारे पास दो टाइप के सेल है. हमने बात की ना, रिप्लेसमेंट ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल विद द अनदर टाइप ऑफ सेल. ओके, बट द पेरेंट सेल रिमेन द सेम. सो वन टाइप ऑफ सेल इज एपिथेलियल, अदर टाइप ऑफ सेल इज द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल हमें पता है, फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं. स्क्वामस है हमारे पास, ठीक है, कॉलमनर है एंड क्यूबाइडल. हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास एपिथेलियम है. या स्ट्रेटिफाइड है हमारे पास, ठीक है, या ट्रांजिशनल है, या सूडो स्ट्रेटिफाइड है, कॉलमनर एपिथेलियम है. कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं. एक हमारे पास आता है मेसेनकाइमल, एंड द अदर थिंग इज द न्यूरल टिश्यूज. ओके, एक हमारे पास आ गया मेसेनकाइमल, दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूरल टिश्यूज. अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल, पहले हम एपिथेलियल को डिस्कस करेंगे, देन हम कनेक्टिव टिश्यू, और देन पे हम न्यूरल पे आएंगे. ठीक हो गई बात. अब इसका मतलब ये था कि पेरेंट सेल, हमारे पास जो पेरेंट सेल है, अब एपिथेलियल इज अ पेरेंट सेल, कनेक्टिव टिश्यू इज अ पेरेंट सेल, कनेक्टिव टिश्यू में फिर मेसेनकाइमल इज अ पेरेंट सेल एंड न्यूरल इज अ पेरेंट सेल. ठीक हो गई बात. अब हमारे पास स्क्वामस से कॉलमनर तो हो सकता है, स्क्वामस से क्यूबाइडल भी हो सकता है, क्यूबाइडल से कॉलमनर, कॉलमनर से स्क्वामस भी हो सकता है, बट कॉलमनर से मेसेनकाइमल और मेसेनकाइमल से न्यूरल नहीं हो सकता, या न्यूरल से मेसेनकाइमल नहीं हो सकता, या मेसेनकाइमल से स्क्वामस या कॉलमनर नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास पेरेंट सेल तो वही रहेगा, एपिथेलियल ही रहेगा, उसमें चेंजेस आएंगी, ये इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स भी हमारे पास वही रहेंगे, बोन, कार्टिलेज, मसल हमारे पास वही होंगे, सिर्फ वो बोन से मसल, मसल से बोन, बोन से कार्टिलेज, इस तरह रिप्लेस करेंगे. ठीक हो गई बात. तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई यहाँ से. अब हम इस एग्जाम्पल मैं आपको एक वन बाय वन बताती हूँ. फर्स्ट हम करते हैं, ठीक है, स्क्वामस से स्क्वामस मेटाप्लेशिया. क्या हमारे पास स्क्वामस मेटाप्लेशिया में हमारे पास क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ सेल है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में. अब वो कहाँ पे होगा? वो हमारे पास होगा जब हम स्मोकर्स में देखें. ये रॉबिन की ही एग्जांपल है, सेम वही चीज़ है. क्रॉनिक चेन स्मोकर्स, क्रॉनिक चेन स्मोकर्स की बात करें तब वहाँ पे हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो एपिथेलियम है दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelium. So that pseudo stratified columnar epithelium in chronic chain smokers is got converted into squamous stratified squamous epithelium. ठीक है, चेन स्मोकर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें. सो यहाँ पे क्या हुआ? मेटाप्लेशिया. व्हाट इज मेटाप्लेशिया? स्क्वामस मेटाप्लेशिया. सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की जगह स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस आ गया. ओके, इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी. अब विटामिन ई डेफिशिएंसी में क्या होता है? स्क्वामस मेटाप्लेशिया होता है. वो भी कहाँ पे? विटामिन ई डेफिशिएंसी में भी स्क्वामस मेटाप्लेशिया होता है इन अपर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में. ठीक है, तीसरी जो एग्जांपल आ सकती है स्क्वामस मेटाप्लेशिया में दैट इज एक तो हमारे पास चेन स्मोकर हो गया. ठीक है, एक विटामिन ई डेफिशिएंसी एंड द थर्ड स्टोन इन डक्ट ऑफ पेनक्रियास. पेनक्रियास की डक्ट में हमारे पास जब स्टोन आ जाए देन उसका जो एपिथेलियम है दैट इज कॉलमनर. तो वो कॉलमनर से चेंज होके क्या हो जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बन जाता है. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द स्क्वामस मेटाप्लेशिया. नाउ दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है दैट इज कॉलमनर मेटाप्लेशिया. स्क्वामस था, कोई भी सेल टाइप है उसकी जगह स्क्वामस ले रहा था. अब क्या होगा? कॉलमनर.
इसको मैं रिमूव करके फिर से कॉलमनर से कॉलमनर मेटाप्लेजिया। ठीक हो गया। कॉलमनर मेटाप्लेजिया हमारे पास किस में होता है? बैरेट एसोफेगस में। बैरेट एसोफेगस इज अ कंडीशन in which the stomach content get back into the esophagus and replace the epithelium of the esophagus into columnar. So what is the epithelium of the esophagus? That is stratified squamous non-keratinized epithelium. Okay, that is replaced by columnar epithelium. So this is a columnar metaplasia. ठीक होगी बात। अब हम बात करेंगे अगर बैरेट एसोफेगस कंटिन्यूस रहा तो सो दैट इट विल डेवलप एडिनोकार्सिनोमा हमारे पास कॉज करता है। ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट इज मेसेनकाइमल और एनी कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया अब हमारे पास कहाँ पे होता है? इसमें हमारे पास आ जाता है ओशियस मेटाप्लेजिया, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइब्रोब्लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? ओस्टियोब्लास्ट आ जाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट आता है। ठीक है। ओशियस मेटाप्लेजिया किस में होती है? मसल, बोन, कार्टिलेज। ठीक है। अब और कॉस्टल कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, उनमें भी होती है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज मायोसाइटस ओसिफिकेंस। मायोसाइटस मसल ओसिफिकेंस। ठीक है। बोन इन मसल, जो बोन है वो मसल की जगह रिप्लेस कर लेता है। ये हमारे पास मेसेनकाइमल के हो गए और ये हमारे पास कॉलमनर और स्क्वामस मेटाप्लेजिया हमने कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटाप्लेजिया एंड दैट्स ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस। ओके, रॉबिन की ये डायग्राम आप देख लें, ये एट्रोफी की डायग्राम है। ये हमारे पास नॉर्मल ब्रेन है एंड दैट इज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ब्रेन इन द एजिड पर्सन। एजिड पर्सन में हमारे पास क्या हो जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये हमारे पास ये सल्काई आप देख रहे हैं, सल्काई क्या हो गए हैं? ये सल्काई हमारे पास वाइडन हो गए हैं और जो हमारे पास गायरा है वो नैरो हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सल्काई क्या है? बिल्कुल नैरो है और जो हमारे पास गायरा है दैट इज वाइडन, बट हियर गायरा आर नैरो एंड सल्काई आर वाइडन। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ। ये एथेरोस्क्लेरोसिस पर्सन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से यहाँ पे जो एट्रोफीड हो चुके हैं। ठीक हो गई बात। ये एट्रोफी की एग्जांपल थी एंड हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ द मेटाप्लेजिया। ये हमारे पास नॉर्मल सूडो स्ट्रेटिफाइड है एंड दिस इज द स्क्वामस सेल्स। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो है और ये हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम है। सूडो स्ट्रेटिफाइड की जगह पे स्क्वामस एपिथेलियम आ गए। सो दिस इज स्क्वामस मेटाप्लेजिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा जो है स्क्वामस मेटाप्लेजिया, दिस इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड हियर इज द स्क्वामस सेल्स। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड चेन स्मोकर्स में मैंने आपको कहा था ये रिप्लेस हो जाते हैं विद द स्क्वामस सेल्स। ओके, सो ये सारा आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे सेल इंजरी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड देन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। थैंक यू।